اور جب اس کے لوگ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں تو خدا کی حضوری کے سبب سے بندھن ٹوٹتے ہیں، اور خدا کی حضوری کے سبب سے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، خاندان برکت پاتے ہیں، شفائیں ہوتی ہیں، معجزات وقوع میں آتے ہیں۔ خدا کی حضوری کے سبب سے ہوتا ہے، حضوری کے سبب سے کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب خدا کی حضوری آئے گی زندگی تبدیل ہو، خاندان تبدیل ہو، قبیلے تبدیل ہو جائیں، اور زندگیوں میں برکت آنی شروع ہو جاتی۔ اس لیے خدا روح القدس کے سبب سے اپنے لوگوں کو برکت دیتا ہے اور رہائی دیتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیں کلام خدا میں سے حضرت داؤد نبی کا زبور ہے، اور یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 58 باب ہے، اور اس کی ورس جو ہے 11 ورس ہے، اور خدا کے کلام مقدس میں سے 11 ورس ہے۔ تو یقیناً خدا کا کلام ہم سب کو بلیس کرے گا، برکت دے گا، کیونکہ خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا اور شفا دیتا ہے۔ خدا اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے، اور خدا شفا دیتا ہے، خدا رہائی دیتا ہے۔ وہ اپنے کلام کے ذریعہ سے زندگیوں اور خاندانوں کو برکت دیتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کبھی بے تاثیر کبھی نہیں لوٹتا، وہ زندگیوں میں اثر کرتا ہے۔ تو آج کلام کے سبب سے خدا آپ کو شفا دے گا، اپنی حضوری کے سبب سے شفا دے گا۔ جی میں خود نکال دیا تو پڑھے تھے، جس نے بھی نکال دیا پڑھے۔ تعریف ہاللیلویا۔ ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے یسایہ 58 باب اور اس کی 11 آیت میں، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوشحالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا۔ بس تو صحرا باغ مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کرنا ہو۔ آمین۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر کلام کی برکت آپ کی زندگیوں میں نازل ہو۔ یہاں پر بڑی سندر بات ہے جو خدا کا بندہ یسایہ بیان کرتا ہے، اور یہ اپنی قوم کے لیے درد رکھنے والا خادم ہے، اپنی قوم کے لیے آنسو بہانے والا خادم، اپنی قوم کو لیڈ کرتا نظر آتا ہے، اپنی قوم کے لیے خدا کی حضوری میں وقت گزارنے والا، اور اپنی قوم کے لیے خدا کی حضوری میں فاسٹنگ کرنے والا خادم ہے، روزے رکھنے والا خادم ہے، دعا کرنے والا خادم ہے، آنسو بہانے والا خادم ہے۔ آج ہم سب بھی خدا کی حضوری میں آنسو بہانے والے بن جائیں، تو ہماری زندگیاں اور خاندان برکت پائیں، شفا ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اس لیے یہاں پر یسایہ کی معرفت خدا آج رات کے پیروں میں خدا آپ کی زندگیوں سے کلام کرتا ہے، اور روح القدس آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا سدا تیری کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا۔ خدا سدا تیری کیا کرے گا؟ خدا سدا تیکر تیرے ساتھ 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 رہے گا۔ خدا کبھی نہیں چھوڑتا، خدا ایمانداروں کے ساتھ رہتا ہے، خدا ایمانداروں کی نسلوں کے ساتھ رہتا ہے، خدا جان اور بدن اور روحوں کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا اس قدر پیار محبت کرتا ہے کہ خدا اپنی زبان سے کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے میں سدا تیری کیا کروں گا؟ رہنمائی کروں گا، میں سدا تیکر تیرے ساتھ رہوں گا، کیونکہ میں اس لیے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں کہ میں نے اپنی تمہاری محبت کے سبب سے اپنے بیٹے یسوع کو دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اس لیے میں سدا تیکر تیری کیا کروں گا؟ رہنمائی کروں گا، حفاظت کروں گا،
निगरानी करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं दुख में, परेशानी में, आहो नाला में, खुदा कहता है तुझे नहीं छोड़ूंगा और मैं सदा तिकर तेरे रात साथ 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 रहूंगा। खुदा कभी नहीं छोड़ता। हम खुदा को छोड़ जाते हैं लेकिन खुदा नहीं छोड़ता। हम नाफरमान हो जाते हैं लेकिन खुदा वफादार है। हम बेदिल हो जाते हैं, खुदा फिर भी हमारी आस रखता है कि मेरे लोग, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, जब भी आएंगे मैं इन्हें कबूल कर लूंगा। खुदा वादों में सच्चा है, उसके वादे अटल है। इसलिए खुदा कहता है कि मैं सदा तिकर तेरी क्या करूंगा, रहनुमाई करूंगा, तेरी रहनुमाई करूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ रहनुमाई करूंगा। और कहता है मैं खुशहाली में भी तुझे क्या करूंगा, सैर करूंगा। खुशहाली यानी परेशानी में भी खुदा कहता है कि मैं तुझे सैर करूंगा, मैं परेशानी में भी तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि मैं वफादार खुदा हूं। इसलिए खुदा कहता है कि मैं क्या करूंगा, तुझे खुशहाली में, परेशानी में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदा नहीं छोड़ता। और आगे खुदा कहता है मैं तेरी हड्डियों को क्या दूंगा, कुव्वत बख्शूंगा। मैं तेरी हड्डियों को क्या दूंगा, कुव्वत बख्शूंगा। मैं तेरी हड्डियों को जोर दूंगा। तेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी तो मैं तुझे क्या करूंगा, जोर दूंगा। तेरी हड्डियां दर्द होगी तो मैं तुझे क्या दूंगा, शिफा दूंगा। मैं तेरी टूटी हड्डियों को छोड़ दूंगा, मैं तेरी हड्डियों को कुव्वत दूंगा। खुदा हमारी हड्डियों की भी हिफाजत करता है, हमारे बदनों की और हमारी हड्डियों की भी हिफाजत करता है। खुदा हमारी हिफाजत करता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है। इसलिए खुदा कहता है कि मैं तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शूंगा, जोर दूंगा, तकवीयत दूंगा और अपने मस्सा के सबब से तेरी हड्डियों को जोर और कुव्वत से भर दूंगा। और खुदा अपनी मस्सा के सबब से, अपने कलाम के सबब से हमारी हड्डियों को कुव्वत बख्शता है। इसलिए दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शता है। तेरा कलाम मेरी हड्डियों को जोर देता है, मेरी हिकमत को बढ़ा देता है, मेरे हौसलों को बुलंद करता है, मेरी जान को जोर और कुव्वत से लबरेज कर देता है और मेरी थकावट को दूर कर देता है। वो मुझे कुव्वत बख्शता है। खुदा अपने कलाम के जरिया से हमारी हड्डियों को कुव्वत बख्शता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है। और जब हम नए ऐहदनामा में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह एक इबादत खाना में थे और लिखा है एक शख्स आदमी था, उसका हाथ क्या था, सूखा हुआ था, उसका हाथ सूखा हुआ था। और कलाम में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मेरी तरफ तेरा हाथ, अपने हाथ को बढ़ा, और लिखा है उसका हाथ जो था सूखा था वो क्या हुआ, हरा भरा हो गया, कुव्वत पा गया। इसलिए खुदा हमारी हड्डियों को कुव्वत और जोर देता है, तकवीयत देता है, तवानाई देता है। और खुदा लंगड़ों को भी क्या करता है, चलाता है। वो अपने लंगड़ों को भी चलाता है। खुदा हड्डियों को जोर देता है। आप देखें एक बूढ़ी थी जो कुबड़ी थी, उसकी हड्डी इस कदर क्या हो गई थी,
कुपड़ी हो गई थी, मुड़ गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको क्या कर दिया? सीधा कर दिया। क्योंकि खुदा हमारी हड्डियों को भी शिफा देता है, हमारी जिंदगियों को शिफा देता है, हमारे बदनों को शिफा देता है, हमारी जान और बदनों रूहों की रहनुमाई करता है, और खुदा हमारी हड्डियों को शोर बख्श देता है। इसलिए क्योंकि खुदा ने हमें तख्लीक किया है, वो हमें शिफा देता है। ये एक देखिए पंखा है, ये जब खराब हो जाएगा, खराब हो जाता है, तो जब ये खराब हो जाता है कंपनी के पास चले जाता है, तो कंपनी से क्या कर देती है? क्या कर देती है? इसे ठीक कर देती है। तो जब खुदा ने मुझे और आपको बनाया है, जब हम उसके पास आ जाते हैं, खुदा हमें भी शिफा दे देता है। आमीन। खुदा हमें भी शिफा दे देता है। कंपनी इस पंखे को ठीक कर सकती है, तो मेरा और आपका खुदा क्रिएटर है, तख्लीकी कार है, जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, वो मुझे और आपको भी शिफा देता है, और हमारी हड्डियों को सीधा कर देता है, हमारी हड्डियों को कुव्वत दे देता है, हमारे पट्टों को जोर देता है, और हमारी अक्ल और तनाई को खुदा हौसलों को बुलंद कर देता है। ये मेरे और आपके खुदा में सिफात और सिफ्त है। इसलिए ईसाया कहता है कि खुदा तेरी हड्डियों को क्या बख्शेगा? कुव्वत बख्शेगा, वो तुझे जोर देगा। और देखें, क्योंकि खुदा अपने लोगों की हिफाजत और निगरानी और सहायता करता है। और लिखा है आगे कलामे खुदा में, बस तू शराब बाग की मानद होगा और उस चश्मे की मानद जिसका पानी कम ना होगा। खुदा हमारी जिंदगियों को इस कदर ब्लेस कर रहा है। खुदा कहता है कि तू शराब बाग की मानद सर सबज होगा, तेरी जिंदगी शादमानी होगी, तेरी जिंदगियों में मैं खुदा कहता है जोर और बरकत दूंगा, तेरे खानदान को बरकत दूंगा। तो उस चश्मे की मानद होगा जिसका कभी पानी कम नहीं हुआ। यीशु मसीह वो चश्मा है, वो चश्मा है जिस हालात जिस वक्त भी हम यीशु के पास आ जाते हैं, वो कभी भी मुंह नहीं फेरता, वो हमें कबूल कर लेता है और हमें शिफा देता है। और वो ऐसा चश्मा है जो हमारी बंजर जमीनों को क्या कर देता है? सुराब कर देता है। वो ऐसा चश्मा है जो हमारी कुव्वत और हड्डियों को जोर बख्शता है, और हमारी जैसी भी हमारी गुनाह कैसे भी नाराज हो, कैसे भी गुनाह हो, खुदा हमारे गुनाहों को क्या करता है? पाक और साफ कर देता है। हम कैसे भी हैं, लेकिन खुदा हमें शिफा देता है। इसलिए खुदा कहता है कि मैं सदा तेरी क्या करूंगा? रहनुमाई करूंगा। आपके बदनों की, आपकी हड्डियों की, आपके रूह की खुदा क्या करता है? जिम्मेदारी लेता है। खुदा जिम्मेदारी ले रहा है। यहाँ पर खुदा क्या ले रहा है? यहाँ पर जिम्मेदारी ले रहा है। खुदा कहता है कि मैं सदा तेरी क्या करूंगा? रहनुमाई करूंगा। मां प्यो छड़ देंगे, भैन भरा छड़ देंगे, लेकिन मेरा और आपका खुदा कभी भी नहीं छोड़ता। यहां पर देखें, खुदा कह रहा है, कहता है मैं सदा तेरी क्या करूंगा। सदा का मतलब क्या होता है? सारी उम्र। तो खुदा कहता है मैं सारी उम्र तेरी क्या करूंगा? तेरी रहनुमाई करूंगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत दूंगा। मैं खुशहाली में, परेशानी में तुझे सैर करूंगा, जोर बख्शूंगा, तेरी हड्डियों को कुव्वत दूंगा, और तू शराब बाग की मानद होगा। और खुदा कहता तो उस चश्मे की मानद होगा जो कभी मकूफ नहीं होगा। खुदा मेरी और आपकी जिम्मेदारी ले रहा है। जब मेरी और आपकी खुदा जिम्मेदारी ले रहा है, फिक्र कर रहा है, और खुदा हमें भी ज़रूरत है कि हम भी खुदावंद पर अपना ईमान और भरोसा रखें, तो फिर खुदा मुझे और आपको क्या देगा?
बरकत देगा। इसलिए खुदा कहता है कि मैं सदा तेरी क्या करूँगा, रहनुमाई करूँगा। इसलिए दाऊद से खुदा ने कहा सदा तिक्र है रहमत मेरे रब की। दाऊद कहता है सदा तिक्र है रहमत मेरे रब की। उसकी सदा तिक्र रहमत मेरे और आपके ख़ानदान पर हमेशा होती रहती है, क्योंकि खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है। खुदा मेरी और आपकी हिफाजत करता है, ज़िम्मेदारी लेता है, और मैंने और आपने भी खुदा की ज़िम्मेदारी लेनी है कि हमने भी उसके हुक्मों पर अमल करना है। जान देने तक खुदा कहता है मैं तेरी सदा तक रहनुमाई करूँगा, और मेरा और आपका फ़र्ज़ भी है कि हम भी जान देने तक क्या रहें, वफादार रहें। खुदा इस कलाम के सबब से मुझे और आपसे मुतवज्जह कर दे। आमीन। जोरदार तालियां। तो वक्त है कि हम अपनी शुक्रगुजारियाँ खुदावंद की हज़ूरी में दें, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, और जिस पैमाना से तुम नापते उसी वास्ते तुम्हारे लिए नापा जाएगा। न दरगेज करके न लाचारी से, बल्कि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखते हैं। जो दिल खोल कर खुदावंद की हज़ूरी में देता है, खुदावंद आसमान के दरीचे खोल कर उन्हें बरकतों से माला माल करता है। सभी अपने हदिया जार खुदावंद की हज़ूरी में हम मोबाइल के साथ मिलकर रसीद करेंगे। आमीन। दे सकते नहीं शिफा सानू ओ जेरे आप तबीब मोहताज ने हेलो और लुट लेंदे कमाई उमरां दी, सब झूठ करने इलाज ने दिती अपने लहू दी दुआ सनू और यसु आप तबीब महाराज ने उन्हें रोज जड़ो मुकाबते जड़ो दिला इला Yesu kolo shifa masakania tumaya uneitania Yesu kolo shifa masakania tumaya uneitania Pane lagiya ne mariza puraya Pane lagiya ne mariza puraya tumaya uneitania Yesu kolo shifa masakania tumaya uneitania
करूं मैं दुआइयां करूं दुआइयां मेरी जानियां दुआइयां मेरी जानियां दुआइयां करूं दुआइयां मेरी जानियां दुआइयां मेरी जानियां पावे लगियां ने मेरी सब पुलानियां लगियां ने मेरी सब पुलानियां दुआइयां मेरी जानियां यीशु करो शिफा मारा सबानियां दुआइयां मेरी जानियां यीशु करो शिफा मारा सबानियां दुआइयां मेरी जानियां 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 यीशु बोलो ने शिफावा अस्सी पानियां दवाइयां होने नहीं खानियां। तो वाकई मेरे अजीजों डॉक्टर की एक लिमिट होती है, उसके क्लिनिक का भी कोई टाइम होता है 5 से 10, 5 से 11 या 6 से 10 तक होता है, लेकिन हमारे खुदा का जो दरबार हमेशा खुला रहता है। वो कहते हैं कि तू एवरी टाइम है, सम टाइम किसी भी वक्त तू मेरे पास आ सकता है और मेरे हजूर में छुपकर दुआ कर और अपनी बीमारी से शिफा को रिसीव कर। तुम्हें जरूरत है कि जबकि खुदावंद हमें बुलाता तुम्हें भी अपने आप को खुदावंद के हुजूर में देने की जरूरत है। सो वक्त है कि हम अपनी अपनी शिफा को रिसीव करें, सभी अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। मैं पास्टर साहब को लाता हूँ, आप सभी के लिए दुआ करें, सभी अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी अपने कदमों पर खड़े हो जाएं और हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हाली हालेलुया। सभी और भाई नासर के साथ मिलकर साई अंतरंगोस गाएंगे और फिर हम सब बरकत पाएंगे। तारीफ हालेलुया। सभी अपने सर को झुकाएं, सभी तारीफ हालेलुया। और खुदा का मसा और खुदा की कुदरत का छुए। और अब वक्त है कि खुदा आपको बरकत देने। खुदा ने आगे भी बरकत दी, आपकी आसमीत को खुदा और प्लस कर पूरा खुदा आपको और ज़्यादा बरकत दे। तारीफ अपना ध्यान, अपनी सोच, अपने ख्यालात खुदा के ताबे कर, अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं, अपनी सोच खुदा की तरफ लगाएं, अपनी आंखों को बंद कर ले, पूरे तौर से बंद कर ले और अपना ध्यान खुदा की तरफ लगाएं और यकीनन मेरा और आपका खुदा लस करेगा और बरकत देगा। और तारीफ हालेलुया। तेरा शुक्र करते मिलकर सब One day,
तारीफ वाले सब दुआ करना सभी दुआ करें, सब दुआ करें, सभी दुआ करें। अपने खानदान के लिए, अपनी जिंदगी के लिए दुआ करें। आप बीमार हैं, परेशानी में हैं, आप इस बीमारी को डांटें। मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, मैं आपके साथ, आपकी रूह के साथ मुत्तफिक हूँ। आप मेरी रूह के साथ मुत्तफिक होकर आप बीमारियों परेशानियों को डांटें, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। बीमारियों और बीमारियों की सारी कुव्वतों को डांटे, बीमारियों को डांटे, इब्लीस को डांटे और इब्लीस से कहे कि प्लीज मेरे खानदान, मेरी बॉडी में से खुदा के बेटे यीशु के नाम से निकल जा। ऐ बीमारियों, परेशानियों, मेरे खानदान में से खुदा के बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। और दुआ करे मेरी बहने, भाई दुआ करे, सिर्फ बच्चे बैठ के बेटे सब दुआ करे। आप दुआ करे, खुदा से मांगे और खुदा से कहे कि खुदा तू मेरा खालिक कुल है, तू मेरा मालिक कुल है और तू शाफी है, तू मेरा रहनुमा है, तू मेरा रब्बर है, तू मेरा बचाने वाला है, तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मेरा मखौसी देने वाला है और तू ही मेरी ढाल और शिफर है खुदा, और तू ही मेरा खुदा। मुझे बरकत दे खुदा, मेरे खानदान को बरकत दे खुदा, मेरे बच्चों को बरकत दे खुदा, मेरी जिंदगी को बरकत दे खुदा, और खुदा तू मुझे बरकत बना दे खुदा। और बीमारियों की सारी कुव्वतों, परेशानियों की हड्डियों, जोड़ों की दर्दों, हार्ट की दर्दों और तमाम तरह की खुदा बीमारियों, इन पत्थरों को खुदा के बेटे यीशु के नाम से बीमारियों छोड़, इन बदलों को इब्लीस लानती छोड़, इन बदलों को इनके खानदान से इब्लीस के सारे मुद्दे टूटे खुदा पाक। तेरी कुदरत, तेरा मसा, तेरा जलाल इनकी जिंदगियों में जाहिर खुदा, और तेरी कुदरत कसरत के साथ इनकी जिंदगी में नासिल हो खुदा पाक। खुदा तेरे लोग शिफा पाए खुदा, जो आस उम्मीद लेकर आ खुदा, इनकी आस और उम्मीद को पूरा कर खुदा, इनकी बॉडियों को छू खुदा, इनकी हड्डियों को छू खुदा, इनके छोड़ों को छू खुदा, इनकी खुदा जिस्म के सारे अज़ाद को छू और शिफा दे खुदा पाक खुदा। और यीशु की कुदरत इनकी जिंदगियों में काम करे खुदा, और बीमारियों यीशु के नाम से बदलो कुछ, और खुदा तेरी कुदरत, तेरा मस्सा इनकी जिंदगियों में काम करे खुदा, और तेरा रूह कुछ खुदा इन जिंदगियों में काम करे खुदा। जो उम्मीद लेकर आए खुदा, इनको ब्लेस कर खुदा, जिनके पास औलाद नहीं खुदा इनको औलाद वाली कर दे खुदा, इनको ब्लेस कर, बरकत दे खुदा। जोड़ो, हड्डियों की दर्द, हार्ट की दर्द, गुर्दों की दर्द, यीशु के नाम से बदलो कुछ रहम कर प्रभु यीशु, अपने नाम की खातिर रहम कर खुदा। जो ऑनलाइन मीटिंग देख रहे खुदा, जो ऑनलाइन है खुदा, उनको ब्लेस कर खुदा, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर खुदा, पाक खुदा यीशु के नाम से इनको ब्लेस कर खुदा। और खुदा पाक खुदा इनकी जिंदगी और खानदानों में मौत से हो खुदा, बरकत आए खुदा, शिफा आए खुदा, बहाली आए, तब्दीली आए खुदा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा, इनको ब्लेस कर, बरकत दे खुदा यीशु के नाम से। जो खुदा पास मीटिंग को लाइक करते हैं खुदा, यीशु नाम से इनको ब्लेस कर खुदा। जो खुदा इस चैनल को लाइक करते हैं खुदा, इनको ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर, ब्लेस कर खुदा। उनकी फैमिली और खानदानों को ब्लेस कर खुदा। तेरी हजूरी, तेरा मसा इनकी जिंदगी में काम करे खुदा, और खुदा हर एक जिंदगी को छू और ब्लेस कर खुदा खुदा। और खुदा तेरी मसा, तेरी कुदरत, तेरी हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा। तू बड़ी बरकत दे और रहनुमाई करना। सारा जलाल तेरे कबूतरान को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिससे हमारे कर्जों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जों में माफ कर, हमें इस्माइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरा रहे, आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की
की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम कदस ईमानदार मसीह लोगों के साथ, हाजिर जमात के साथ, पाकिस्तान बन इसराइल के साथ अब से हमेशा तक साथ होती रहे, ये उसी के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबों को बरकत दें, आप सलामती से जाएं और खुदा ने आप सबों को ब्लेस किया, बरकत दिया।